And then I was listing some of the immediate properties which one can deduce from the given definition, namely the inner product of a vector with itself is always real, and for every u, 0 और u का inner product is always equal to 0, right? और जो ब्लू में लिखा हुआ है ये भी उस दिन करना चाहते थे, लेकिन चूंकि समय नहीं था तो नहीं रह गया था, तो एक थर्ड प्रॉपर्टी इसमें ऐड कर लीजिए ये वाली, और मे बी आई कैन स्टार्ट विद अ फ्रेश पेज, राइट? तो ये दो, नीले को छोड़ दीजिए, ये दो प्रॉपर्टीज की थी, और ये भी आपको दिखाया था कि एक ही वेक्टर स्पेस पे एक से अधिक इनर प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिखा था, ऑफ कोर्स सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, राइट? सो let us start with a new page today. सर हाँ बोलिए। ऐड कर लीजिए। हाँ बोलिए। कुछ नहीं, आपने कर दिया। हाँ। ओके। सो आई वाज सेइंग कि हम लोग एक नए उससे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका था। तो हमने आपके आने से पहले कुछ लिखना शुरू किया था, लेकिन somehow वो ठीक से शायद सेव नहीं हुआ, whatever. So let me see whether it comes back or not. So apparently it is not coming back, right? तो हम यहाँ लिख देते हैं। तो the third immediate property was, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास एक इनर प्रोडक्ट स्पेस दिया हुआ है, a vector space together with an inner product. हाँ, अभी बहुत लोग हैं ऐड होने के लिए। बहुत लोग हैं, अच्छा। Okay, the third property is that so I was saying that मान लीजिए ये विनर प्रोडक्ट है ओवर सम वेक्टर स्पेस, तो विद रिस्पेक्ट टू दिस थिंग हम हर चीज कह रहे हैं, राइट? सो गिवन v1 v2 in v, inner product of u with v1 is equal to inner product of u with v2 for every u, implies v1 is equal to v2, right? Because why? Because you can see that because you can see that since u comma v1 minus v2 will be equal to this minus this, और चूंकि दिया हुआ है कि दोनों बराबर हैं, so this will be equal to 0. So therefore आपको याद होगा कि if the inner product of u itself is equal to 0, then u has to be equal to 0. So that means, so this is equal to 0. This is equal to 0 for every u in v. Therefore, in particular, I take u to be equal to v1 minus v2. So in particular, v1 minus v2 is equal to 0. Again repeat, हम लोगों ने यहाँ क्या दिखाया है कि कोई भी u, हर u के लिए u comma v1 minus v2 is equal to 0. अगर ये दिया हुआ है तो ये हर u के लिए ट्रू है, so I replace this u by v1 minus v2, so I'll get this thing also. But already we know that
अगर इनर प्रोडक्ट ऑफ u itself is equal to 0, then u is equal to 0. So therefore v1 minus v2 is equal to 0. और यहां से आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका that v1 is equal to v2. और जो आपको हमने एक्सरसाइजेस दी थी इनर प्रोडक्ट्स की, ये एग्जांपल दी थी, उसमें एक और जोड़ लीजिए. एग्जाम्पल या एक्सरसाइज कह दीजिए, वो ये है कि let V be a vector space over F, and let W be an inner product space over F. Let T from V to W be a linear transmission. Define a new map from V cross V to F as follows. Given two element V1 and V2 of capital V, this is defined as T is a transformation from V to W, तो small v1 की इमेज W में चले जाएगी, और ऐसे ही स्मॉल v2 की इमेज भी W में चली जाएगी. अब ये W के एलिमेंट्स हो गए. W is already given to inner product space, so we can talk about the inner product of two elements of W. ये दोनों W के एलिमेंट्स हैं, तो आपने ये कर दिया, राइट. Then this is an inner product on, एक चीज कहना भूल गए, let this be a 1-1. Let this be a 1-1 linear transformation from V to W. Then this is going to happen. तो करना क्या है आपको, जो इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन में जो रिक्वायरमेंट्स हैं 3 या 4 कंडीशन के वेरीफाई कीजिएगा, और उसमें याद कीजिएगा दोनों चीज इस्तेमाल होंगी. क्या क्या इस्तेमाल होगा, एक तो ये इस्तेमाल होगा T is 1-1, और दूसरा इस्तेमाल होगा T is linear transmission. लिनियर ट्रांसमिशन का क्या हो जाएगा कि T of X V1 plus V2 is equal to T of V1 plus T of V2, और दूसरा क्या, T of alpha into small v is equal to alpha into T. इन तीनों चीजों का इस्तेमाल होगा टू वेरीफाई दिस थिंग. आसानी से हो जाएगा, राइट. बिलीव मी, इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी. आपको केवल वेरीफाई करना है, ठीक है. एंड देन द नेक्स्ट थिंग दैट वी डू इज द फॉलोइंग. Given an inner product space, this over F, right? Put for each U this thing as the square root of the inner product of U itself. दो चीज याद कीजिए. आप याद कीजिए कि हम लोगों ने देखा था कि हमेशा U, U was always real and positive, और जीरो तभी होता था जबकि U is equal to 0. So that means if U is not equal to 0, then ये सब डेफिनेशन का पार्ट था या उससे निकल आता था, राइट. तो ये जो होगा इन जनरल तो क्या होता है कि अगर दो एलिमेंट डिस्टिंक्ट हो तो ये बिलोंग करता है किसको,
एफ को बिलोंग करता है। और आपको याद होगा कि हमारा एफ जो है वो केवल और केवल, हमारा एफ जो था वो केवल, ये एफ जो था ये या तो आर होगा और या सी होगा, इसके अलावा कोई चीज पॉसिबल नहीं थी। तो अगर u कमा v कॉम्प्लेक्स नंबर है तब तो इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमने देखा था कि इवन इफ f इज इक्वल टू c, द इनर प्रोडक्ट ऑफ u itself इज ऑलवेज गोइंग टू बी रियल नंबर। तो ये हमेशा रियल नंबर है। और अगर u इज नॉट इक्वल टू 0 तो पॉजिटिव भी है। तो इसका आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, राइट। कॉम्प्लेक्स नंबर होता तो दिक्कत हो जाती। सो दिस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, नेगेटिव कभी नहीं होगा, नेगेटिव कभी भी नहीं होगा, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। जीरो तभी होगा जब u इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स इट इज ऑलवेज पॉसिबल ऑफ दिस थिंग। सो हम कहेंगे बाय कन्वेंशन वी टेक पॉजिटिव स्क्वायर रूट ओनली। वैसे तो प्लस माइनस आएगा बट वी टेक ओनली द पॉजिटिव वैल्यू। सो गिवन an inner product like given an inner product like this thing, for each you can define something this thing. Then this gives a function this from v to कहां पर positive reals. This will give this thing, or further this thing is called the norm of u, और किसी किताब में और the length of u। तो हर इनर प्रोडक्ट, राइट, हर इनर प्रोडक्ट is going to induce what is called as a norm on the vector space, norm on the vector space, and one can verify that सबको याद कीजिएगा, 1 2 3 ये सब बार बार इस्तेमाल करने वाली चीजें हैं, इसलिए मैंने लाल से लिख दिया है। तो पहला क्या है कि वन कैन वेरीफाई दैट अल्फा यू, अगर u वेक्टर है तो अल्फा u भी वेक्टर है फॉर सम स्केलर अल्फा, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल टू दिस, राइट। पहला तो ये। दूसरा, this thing is always non-zero, and this thing is greater than 0 if this is not 0, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स द नॉर्म ऑफ द जीरो वेक्टर इज 0, और ये जो है ये थोड़ा टेक्निकल है, v प्लस u का नॉर्म इज ऑलवेज लेस देन द नॉर्म ऑफ v प्लस द नॉर्म ऑफ u। इसको बोलेंगे ट्रायंगल। हाँ बोलिए। थर्ड वाले में तो सर नॉर्म ऑफ u इज इक्वल टू 0 होना चाहिए ना, ये प्रॉपर्टी हम लोग। नहीं, क्या कर रहे हैं थर्ड वाले में?
नॉर्म ऑफ यू इज इक्वल टू 0 होना चाहिए ना सर? नहीं नहीं नहीं, क्यों ऐसा क्यों आपको लग रहा है, बताइए। सर वजह- हम लोगों ने बीएससी में सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, नॉर्म की प्रॉपर्टी में ये था उसमें कि नॉर्म ऑफ यू इज इक्वल टू 0 इफ ऐसा एंड ओनली अल्फा इज इक्वल टू 0। वो तो उसी से आ जाएगा, इसी से आ जाएगा, दोनों कंबाइन कर दीजिए, यहीं से आ जाएगा जो आप कह रही हैं, है ना। इसको कंबाइन कर दीजिए, दिस विल मीन दैट दिस थिंग इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ इज इक्वल, इसी से आ जाएगा। ये सर हमने केवल उसको स्प्लिट कर दिया है ना। आपने ठीक पढ़ा है, ठीक याद आ रहा है, लेकिन आप जो बोल रही थी वो दूसरा चीज था, है ना। तो दोनों कंबाइन कर यही चीज आ जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीजें जो हैं दे कैन बी इजीली वेरीफाइड, ठीक है, इनको आप वेरीफाई कर सकते हैं आसानी से। तो नॉर्म जो है ये सब चीजें सेटिस्फाई करेगा। एंड देन अब हम इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम नेक्स्ट पेज स्टार्ट हैं। हाँ चल रहा बता दो, चल रहा है। देन धन्यवाद, थैंक्स। ओके, and then another thing that we shall be requiring frequently, it is known as the Schwarz inequality. Right, we say that in any inner product space V, if you take two elements x and y of V, then so this may be, remember this may be a complex number also, right? This may be complex, real भी हो सकता है, complex भी हो सकता है, right? So you take this thing, its absolute value is always less than this for all xy in V. Moreover, the above inequality is equality if and only if x and y are linearly dependent. ठीक है, यहाँ पे पढ़ा होगा, लेकिन चूंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए फिर भी आपके बस का प्रूफ जल्दी से याद दिला दें। तो मान लीजिए इसको हम बोल देते हैं 1। If x is equal to 0, 1 is obviously true. क्यों? अगर x 0 हो गया तो आपको मालूम है नॉट प्रोडक्ट ऑफ 0 विद एनीथिंग इज 0, तो ये 0 हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड 0 हो गई। और अगर x 0 हो गया तो आपको मालूम है नॉर्म ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, तो ये 0 हो जाएगा। सो दिस इज ऑल, दोनों साइड 0 0 हो जाएंगे, इसलिए दिस इज ऑलवेज ट्रू। तो मान लीजिए हमको उसी के लिए केवल रीजन दे रहा जबकि x इज नॉट इक्वल टू 0। लेट x बी नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम क्या करेंगे कि बहुत सारे प्रूफ्स हैं इसके, अलग अलग किताब अलग अलग प्रूफ हैं। सो हो सकता है कि जो प्रूफ हम यहाँ लिखने वाले हैं वो प्रूफ उससे डिफरेंट हो जो आपने अपने बीएससी पढ़ा हो, राइट। सो इट डजंट मैटर, आप अपने प्रूफ को दे दीजिएगा, इट डजंट मैटर, राइट। बट दिस इज अ वेरी शॉर्ट प्रूफ। तो हम क्या करते हैं कि पुट z to be equal to y minus the inner product of y and x divided by the square of the norm of x into x. Remember,
because x is not equal to 0, norm of x is not equal to 0, so it is legitimate to divide by this thing. अगर 0 था तो डिवाइड नहीं कर सकते थे आप, तो हमने इसको ऐसे कर दिया. Now अगर आप ये निकालें तो आपको मालूम है कि u का इनर प्रोडक्ट इटसेल्फ इज ऑलवेज पॉजिटिव. ये तो मालूम है आपको, ये कभी हमेशा 0 से बड़ा होता है, राइट? 0 से बड़ा होता है. सो यू टेक दिस वन एंड देन व्हाट आई विल डू, आई विल राइट इट एज z का जो फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म क्या है? y माइनस y x का इनर प्रोडक्ट दिस इंटू x. क्या लिख दिया हमने? हाँ, ये गलत लिख दिया. यहाँ तो कम होना चाहिए था. एक तो ये हुआ और दूसरा z हो गया y माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ y विद x डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ x का स्क्वायर इंटू x. ये हो गया. अब इसको आप खोल लीजिए, ये याद रखते हुए कि इनर प्रोडक्ट इज लीनियर इन द फर्स्ट वेरिएबल एंड कॉन्जुगेटेड इन द सेकंड वेरिएबल. रिमेंबर ये स्केलर हो गया, अब ये स्केलर हो गया, ये स्केलर हो गया, ये भी स्केलर है, राइट? तो क्या हो जाएगा? पहला क्या हो जाएगा? इनर प्रोडक्ट ऑफ y विद दिस. फिर क्या हो जाएगा? इनर प्रोडक्ट विद माइनस साइन, इनर प्रोडक्ट ऑफ y विद दिस थिंग. तो इसको यू कैन पुल आउट, यू कैन पुल इट आउट, क्योंकि स्केलर है. यू कैन राइट इट एज y x स्क्वायर. इसको कर रहे हैं इनर प्रोडक्ट. क्या हो जाएगा? लेफ्ट में y आएगा, तो आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया. अब इसको कीजिए इससे मल्टीप्लाई. क्या हो जाएगा? माइनस स्केलर को बाहर निकाल दीजिए. आई एम सॉरी, ये क्या हो जाएगा? y इंटू वाई. यहाँ गड़बड़ी कर गए, क्योंकि इनर प्रोडक्ट जो है दैट इज कॉन्जुगेट इन द सेकंड वेरिएबल. तो ये सेकंड वेरिएबल था ना, तो यहाँ पर क्या जाएगा? ये आएगा. ये जो स्केलर था इसका कॉन्जुगेट यहाँ पर आ जाएगा. देन यू मल्टीप्लाई दिस थिंग विद दिस थिंग, सो यू विल गेट, ये तो फर्स्ट वेरिएबल में आ जाएगा इधर वाला, तो y x फिर एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट और फिर दिस इनटू दिस. टर्म y कोमा y बार नहीं होगा? किसका? ये वाला? इसी का फर्स्ट टर्म है वो. ये वाला नहीं. ऐसा क्यों होगा? क्यों दिमाग में ऐसा? आपको बताइए. हमारे पास बेटा सेकंड वेरिएबल तो सुनो, हमको लिखने दो पहले. आपको इससे शायद क्लियर हो जाएगा. अगर हम ऐसा लिखते तो आपको याद है दिस इज सेम थिंग एज, याद है कि नहीं? यस सर. और अगर हम ऐसे लिखते हैं, मान लो तुमने देखा था दिस वाज इक्वल टू दिस, ये भी याद है? यस सर. ये याद है? ठीक है सर, समझ गया. ओके, ठीक है. ओके. सो कमिंग बैक टू, अभी पूरा नहीं हुआ. हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे इससे, ठीक है? तो अब जो आप कह रही हैं वो चीज अब यहाँ पर आएगी. तो इसको मल्टीप्लाई करें इससे, तो क्या हो जाए? अब ये जो है ये हमारा इधर का ये सेकंड में आ रहा था, तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो गया. पहला वाला स्केलर तो ऐसे ही आ जाएगा. दूसरा वाला स्केलर जो है उसका कॉन्जुगेट आ जाएगा. तो y x कॉन्जुगेट और फिर दिस इंटू दिस मीन्स, लेकिन आपको मालूम है कि x का प्रोडक्ट इटसेल्फ इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ x स्क्वायर. तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ये तो इससे कैंसिल हो गया. बात समझ आ रही कि नहीं? ये तो कैंसिल हो गया. अब जरा इधर गौर कीजिए क्या मिल रहा है आपको. ओके, सो व्हाट आई कैन डू इज, यू रिमेंबर इतना जो पार्ट है इसको हम ऐसे कर देते हैं. इतना जो पार्ट है, ये जो पार्ट है
ये जो पार्ट है, हमको मालूम है कि दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, क्योंकि आपको मालूम है इनर प्रोडक्ट इज कॉन्जुगेट सिमेट्रिक, याद है कि नहीं? सो आई कैन रीराइट दिस थिंग। अब दोनों का मिलान कीजिए, दोनों का मिलान कीजिए, तो ये टर्म हुआ ये टर्म हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको थोड़ा और छोटा कर देंगे। सो दिस विल बी माई दिस माइनस 2 टाइम्स, तो बराबर हो गए, दोनों बराबर हो गए। सो दिस आई कैन राइट एज ठीक है, दिस आई कैन राइट लाइक दिस थिंग। और यहां पर हमको मिल जाएगा प्लस प्लस, इसको हम लिख देंगे ये कर देंगे। सो दिस इज इक्वल टू, एज यू कैन सी, दिस माइनस ये -2 है, यहां तो एक घट जाएगा तो जाएगा दिस स्क्वायर बाई, अब एक मिनट के लिए बीच का सब भूल जाइए, ये जितना बीच का है सब भूल जाइए, जस्ट जितना ये सब भूल जाइए, राइट, ये सब भूल जाइए। तो व्हाट वी हैव शोन इज दैट दिस पार्ट, ये सब भूल जाइए, आ नहीं रहा है। व्हाट यू हैव सीन इज दैट दिस पार्ट, द राइट हैंड साइड इज बिगर देन 0, the right hand side is bigger than 0, so therefore as a consequence तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि 0 is less than or equal to x square, norm of x का whole square into y square minus y comma x, this thing, right? And from which 1 follows, दिखाई पड़ जाएगा, राइट, यही आ जाएगा। दोनों सब स्क्वायर कर दीजिए तो यही मिल जाएगा ना आपको, इसको स्क्वायर कर दीजिए वो यही चीज है, तो यहां से आपको मिल जाएगा। सो दिस इज ए शॉर्ट क्विक प्रूफ ऑफ द श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी पहले वाले पार्ट का। अभी ये बाकी है, अभी ये पार्ट बाकी है, अभी ये पार्ट बाकी है, ठीक है। तो इसको देखा जाए, तो इसको देखा जाए तो इस पर हमने आप पेज नहीं खोलेंगे, हम ऊपर ही चले जाएंगे। सो ओके, next let 1 be an equality, तो अब ये बराबर हो गया, ये बराबर हो गया, तो हमें क्या दिखाना है कि x and y are linearly independent, right? Dependent. Huh? Sorry, linear dependent. I'm sorry, linearly dependent. Okay. तो बोलिए क्या कीजिएगा? तो पहली चीज तो ये हो गई कि वही चीज हो गई कि अगर ये x 0 हो गया जिसके केस में बराबर है, तो 0 एंड एनी अदर वेक्टर ऑलरेडी लीनियर डिपेंडेंट, कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट। तो हम उसी केस के लिए वरी करेंगे, उसी केस के लिए वरी करेंगे। सो लेट मी राइट, हमको इसको खिसकाना ही पड़ेगा, उसके बिना नहीं होगा। ओके ओके
So okay, then if x equals 0, the linear dependency of x and y ऑब्वियस है, उसमें कुछ करना ही नहीं है। तो हम मान लेते हैं सो लेट उस केस में अगर ये वन इक्वालिटी, तब भी दिखा देंगे कि एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट। सो लेट एक्स, राइट, चूज जेड एज बिफोर। तो क्या था वो, फिर हमको जाना पड़ेगा पीछे, विच इज व्हाट आई वांटेड टू अवॉइड, राइट। सो चूज जेड एज बिफोर, यही ले लिया आपने, यही ले लिया, यही आपने ले लिया, राइट। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि देन ये जो आपको आया था, याद कीजिए क्या आया था, ये आपका आया था समथिंग लाइक दिस थिंग, समथिंग लाइक दिस थिंग, हमको याद नहीं आ रहा, ये लिखा तो है, यहीं पे तो है सब कुछ, यही तो है। सो दिस वाज this square minus y comma x square right, which is equal to this square into y square minus this square on this, right। लेकिन अगर ये वन इक्वलिटी हो गया तो ये दोनों, ये इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0, दिस थिंग इज गोइंग टू बी इक्वल, यहां लिखते हैं, दिस थिंग इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0। चलिए लिखने नहीं दे रहा ये, बिकॉज दिस थिंग इज इक्वल टू 0, अगर इक्वलिटी हो तो ये 0 हो जाएगा। तो दैट मीन्स therefore this is equal to 0, कब, अगर ये वन इक्वलिटी है, राइट। बट देन दिस विल इंप्लाई दैट z इज इक्वल टू 0, और अगर z इज इक्वल टू 0 हो गया, ये आपका z था, ये आपका z था, अगर z इज इक्वल टू 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा, राइट। सो लेट मी that means y is equal to y comma x canal product, y and x canal product by this square into x। और ये है क्या, ये क्या है, ये जो है this is स्केलर। तो ये सब स्केलर है, ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर, ये स्केलर हो गया, ये नॉन जीरो है क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू, y इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ x, राइट। दैट इज y एंड x आर लीनियरली डिपेंडेंट, यही चाहते थे आप, अगर इक्वलिटी है तो डिपेंडेंट है। तो ये हो जाएगा कि अगर इक्वलिटी है तो x एंड y हैव टू बी लीनियरली डिपेंडेंट। लेकिन हमारा स्टेटमेंट क्या था, इक्वलिटी है इफ एंड ओनली इफ। उल्टा भी करना पड़ेगा कि अगर x और y लीनियर डिपेंडेंट है तब ये जाकर के इनइक्वालिटी इक्वलिटी हो जाएगी, राइट। बट दैट इज वेरी इजी, राइट, दैट इज वेरी इजी, राइट। कन्वर्सली लेट x and y be linearly dependent. Then you can write y as some scalar multiple of x for some k.
in this thing. अब उसके बाद रेस्ट एक्सरसाइज. देखिए क्यों हम एक्सरसाइज लिख रहे हैं, यहां देखिए क्या दिखाना है आपको दिखाना क्या है कि ये जो है आपका इक्वलिटी हो जाएगा. अगर एक्स और वाई तो आप क्या कीजिएगा, यहां पर लिख दीजिएगा. इसकी जगह क्या लिखिएगा, आप इसको लिखिए, ये आपको निकालना है ना, तो आप इसको लिखिए. ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू एक्स. इसको कंप्यूट कीजिएगा तो ये अपने आप बराबर आ जाएगा, ये अपने आप बराबर आ जाएगा इसके. और यहां लिख नहीं पा रहे, आई एम सॉरी. So this will turn out to be equal to यही y है, तो ये अपने आप निकल के आ जाएगा. सो इक्वलिटी प्रोवाइडेड x एंड y आर लीनियरली डिपेंडेंट, राइट. और चूंकि आपने ये सब पहले किया भी होगा इसलिए, सो इफ यू विश यू कैन टेक छोटा कर दें, छोटा होता है तो नहीं होगा. ओके, तो इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट. हो गया? हेलो, यस सर हो गया. यस सर हो गया. थोड़ा सा रिपीट हो जाएगा. ठीक है, आगे बढ़े. यस सर. ओके, और इसी में आप जोड़ लीजिएगा, सब आसान है एक्सरसाइजेस. verify this thing. X plus this is equal to आपको याद आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज पैरेललोग्राम लॉ. एग्जैक्टली. तो ये सब आप देख लीजिएगा, ठीक है. ओके, एंड नाउ वी, तो इसको भी कर लीजिए, तो हम फिर नेक्स्ट पेज पे जाएंगे. आई विल पास ऑन टू द नेक्स्ट पेज. चलें नेक्स्ट पेज पे. यस सर. यस सर. यस सर. ओके ओके, आने दीजिए. So we always assume that some inner product space V over F is given. ये हम बार बार लिखेंगे नहीं, राइट. ये हमारा हमेशा बैकग्राउंड में रहेगा कि एवरीथिंग इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इन द कंटेक्स्ट ऑफ सम गिवन इनर प्रोडक्ट स्पेस, जिसको वी से डिनोट करेंगे, उसके इनर प्रोडक्ट को ऐसे डिनोट करेंगे, और फील्ड को हमेशा एफ से डिनोट करेंगे जब तक कि कुछ और अलग से न कहा जाए, राइट. सो U and V, two elements
are called orthogonal if their inner product is 0. ठीक है? We then also write like this. ठीक है? If S is a subset of V, to S, if U is orthogonal to V for every V in S. ठीक है? सो जो पहली जो इंटरेस्टिंग चीज है, और चूंकि वो है तो बहुत आसान लेकिन बड़ी यूजफुल है, इसलिए उसको हम प्रोपोजिशन का दर्जा देंगे, राइट? एंड दैट सेज दैट any set S of mutually orthogonal vectors of phi is linearly independent. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब भी हो जाएगा कि xi is orthogonal to xj if I is not equal to j. Right? This is what this is going to mean, right? That xi is orthogonal to any other member which is different from xi. तो बोलेंगे they are mutually orthogonal. So any set, गलत लिख गए, any set of एक चीज लिखना भूल गए, mutually orthogonal, ये important है, non-zero vectors of V is linearly independent. तो बड़ा आसान है. मान लीजिए कि you have alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 plus alpha 3 x3 plus alpha n xn is equal to 0, where these alpha i's are scalar. तो क्या दिखाना है हमको? That each alpha is 0, which will show that this set is linearly independent, right? Then if you take this thing और दूसरा कोई ले लीजिए, मान लीजिए आपने x से ले लिया, ले लीजिए इनका इनर प्रोडक्ट. तो चूंकि ये चीज जीरो है, चूंकि ये चीज जीरो है, so this has to be equal to 0. This has to be equal to 0 because this thing is equal to 0, this is equal to 0. लेकिन ये है क्या? इसका फुल फॉर्म क्या है? अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 प्लस अल्फा. दिमाग में रखिए, दिमाग में रखिए, ये भी दिमाग में रखिए कि इनर प्रोडक्ट is linear in the first variable, so that will give you the following. This will give you alpha 1 x1 xj plus alpha 2 xj वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें आएंगी. कहीं पर ये भी आएगा इसमें अल्फा j xj
xj plus alpha j plus 1 xj plus 1 xj etc. Finally alpha n xn xi, नहीं ये क्या लिया हम, j लिया है, j। अब चूंकि ये सब म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है, तो इफ j इज नॉट इक्वल टू 1 दिस इज 0, इफ j इज नॉट इक्वल टू दिस इक्वल 0, सब जीरो हो जाएंगे, केवल यही एलिमेंट हो सकता है सर्वाइव करें, इसके अलावा सबके सब जीरो हो जाएंगे, सबके सब जीरो हो जाएंगे, राइट, सबके सब जीरो हो जाएंगे। सो यू विल गेट, सो देयरफॉर दिस विल गेट रिड्यूस। सर एक बार लास्ट में समझा दीजिए। हम ये कह रहे हैं बेटा कि इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2, दिखाई नहीं पड़ रहा लेकिन चूंकि कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, प्लस 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 अल्फा एन xn। तो जब इसका इनर प्रोडक्ट लेंगे इससे, तो यहां पर हम उस चीज को लागू करेंगे, द इनर प्रोडक्ट इज लीनियर इन द फर्स्ट वेरिएबल, जिसकी वजह से ये दिखाई पड़ेगा। पहला टर्म क्या होगा, अल्फा 1 x1, और इसका क्या हो जाएगा, अल्फा 1 बाहर निकाल लीजिए, x1 xj का इनर प्रोडक्ट हो गया। फिर दूसरा क्या है, अल्फा 2 x2, तो अल्फा 2 x2 को जब इससे कीजिएगा इनर प्रोडक्ट, अल्फा 2 बाहर निकाल लीजिए, इनर प्रोडक्ट x2 xj आ जाएगा, ऐसे चलता जाएगा अंत तक। लेकिन चूंकि ये जो है म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है, जिसका अर्थ ये होता है कि एनी टू ऑफ देम डिस्टिंक्ट अगर है तो उनका इनर प्रोडक्ट जीरो होगा, उनका इनर प्रोडक्ट जीरो होगा। तो ये अगर j बराबर 1 के नहीं है तो जीरो हो गया, j बराबर 2 के नहीं जीरो का, तो ये केवल इसको छोड़ करके बाकी जितने भी इनर प्रोडक्ट के जो पहले वाले जो वेक्टर्स हैं, दे आर ऑल डिफरेंट फ्रॉम xj, वो सबके सब जीरो हो गए, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, सब जीरो हो गए, केवल ये सर्वाइव करेगा। तो ये घट करके ये दिखाई पड़ेगा आपको अल्फा j xj xj, और कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा आपको, राइट। लेकिन अब हम इस चीज को इन्वोक करेंगे कि ये सब नॉन जीरो भी हैं, क्योंकि नॉन जीरो भी है, सबके सब नॉन जीरो है, तो इसका मतलब xj भी नॉन जीरो है। तो xj नॉन जीरो है तो इसका मतलब दिस थिंग कैन नॉट बी जीरो, दिस थिंग कैन नॉट बी जीरो, उसके बावजूद भी ये जीरो है। ओनली कंक्लूजन दैट अल्फा j हैज टू बी जीरो, राइट। सो दिस विल imply that alpha j is equal to 0. Why? Because this thing cannot be equal to 0. ये तो 0 हो ही नहीं सकता है, as xj is not equal to 0. तो अल्फा j 0 हो गया। तो हमने एक xj के लिए क्या था, अल्फा j is equal to 0, ये सबके लिए कर सकते हैं, राइट, which is true for every j varying from 1 to n। तो ये जो लिखा हुआ था, जब भी अल्फा 1 x1 अल्फा 2 x2 अल्फा n xn 0 होगा तो अल्फा 1 भी 0 हो जाएगा, अल्फा 2 भी 0 हो जाएगा, अल्फा 3 भी हो जाएगा। therefore s is linearly independent। so any set of non-zero mutually orthogonal vectors is necessarily linearly independent, right। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी हुई, राइट। एंड देन इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया, इसका स्क्रीनशॉट हो गया, Yes, sir. okay। So maybe I'll just go here, okay, ठीक है, okay। then now ये भी है तो आसान, लेकिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम थ्योरम को दर्जा देंगे, राइट। थ्योरम का मतलब कि कोई ऐसा रिजल्ट जिसका असर पड़े आगे जाकर के, राइट। और ये कहता है कि इन एनी फाइनाइट डायमेंशनल inner product space V,
देयर एग्जिस्ट, वी बहुत अच्छा नहीं लिखा हुआ है, देयर एग्जिस्ट a basis consisting of mutually orthogonal vectors। और ये बहुत काम का रिजल्ट साबित होगा, राइट। तो इफ द प्रूफ इज बाय इंडक्शन ऑन the dimension of V, right? If dimension of V is equal to 1, the proof is trivial, as any non-zero vector, say x of V, will serve such base। क्यों? अगर आपने V का कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट ले लिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि नॉन जीरो एलिमेंट अकेला जो होता है हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट तो हो गया, ठीक है, डायमेंशन आपकी एक ही है, ठीक है, तो ये इसको जनरेट भी कर देगा, तो बेसिस तो फॉर्म कर देगा। अब ये म्यूचुअल ऑर्थोगोनल क्यों है भाई? म्यूचुअल ऑर्थोगोनल कब होते हैं किसी सेट को, कब बोलते हैं? व्हेन वी टेक एनी टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, तो उनका इनर प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। लेकिन यहां पर तो इस सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है, तो ना डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स मिलेंगे, ना म्यूचुअल ऑर्थोगोनलिटी पे कोई खतरा होगा। सो एनी सिंगल वेक्टर will always form trivially a mutually orthogonal set of vectors, क्योंकि एक ही तो है, दूसरा ढूंढना ही नहीं है। तो इस केस में तो आपका ट्रू हो गया। तो अब मान लीजिए assume the result to hold good for all inner product spaces of dimension up to n। अब आप क्या कीजिए कि let V be an inner product space of dimension n+1। Now choose any subspace, say S of V of dimension n. Then by induction hypothesis, S has a basis, say x1, x2, xn, consisting of mutually orthogonal vectors। अब आप क्या कीजिए कि choose an element y which is not in S but it is in V। ये संभव है क्योंकि V की डायमेंशन n+1 है और S की डायमेंशन केवल n है, तो V में जरूर S से अधिक कुछ एलिमेंट्स होंगे। तो एक एलिमेंट चुन लीजिए
और उसका नाम दे दीजिए, मान लीजिए v, चूज सम एलिमेंट v, चूज सम एलिमेंट v, एंड देन let beta I be equal to inner product of y with xi divided by the square of the norm of this xi into this thing. So take beta I to be this thing, right? Then beta I belongs to f. And this you do for every I. जाएंगे। अब आप क्या कीजिए कि put y dash to be equal to beta I xi. तो I varying from, इसको यहां नहीं लिखेंगे, यहां लिखेंगे बीटा आई एक्स आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n. तो y डैश को एक नया एलिमेंट लीजिए लाइक दिस थिंग, राइट? एंड देन फाइनली पुट z to be equal to y minus y dash, right? Note that z cannot be in S. Why? Since if अगर आपने z को S में होने दिया, then ये जो एलिमेंट है ये तो एक्स आई का लीनियर कॉम्बिनेशन है। एक्स आई किसके एलिमेंट है? एस के एलिमेंट है। एस वेक्टर स्पेस है, तो इसके एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन भी एस के बाहर नहीं जा सकता, यानी कि ये एलिमेंट वाई डैश भी देन एस वाई डैश एस में है। तो अगर आपने z को s में होने दिया, y डैश पहले से ही s के अंदर है, तो y इज गोइंग टू बी इक्वल टू z प्लस y डैश। तो z भी s का एलिमेंट हो जाएगा, y डैश भी s का एलिमेंट हो जाएगा, s वेक्टर स्पेस है, देयरफॉर सम ऑफ टू वेक्टर्स विल रिमेन विद इन s, तो y भी s का एलिमेंट हो जाएगा। लेकिन हमने पहले से y को s का एलिमेंट s के बाहर चुना है। देन एज दिस थिंग y will be in S. तो ये इसका मतलब कि Z is not this. Now put B to be equal to x1 से लेकर के xn तक तो चले जाइए और इसमें एक और ये जोड़ दीजिए Z। तो ये तो एलिमेंट हो गए जो S की बेसिस है, उसमें आपने एक एलिमेंट और जोड़ दिया जो कि इसके बाहर है, क्योंकि Z जो इसके बाहर है। सो देयरफॉर the number of elements in B is equal to n plus 1, right? So now we claim that this is a basis, right? This is a basis. तो क्या दिखाना पड़ेगा कि ये सब के सब लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, राइट? और V का कोई भी एलिमेंट इससे इसका लीनियर कॉम्बिनेशन है। सो दिस विल बी a basis of V, राइट? तो इसमें n+1 एलिमेंट है, तो आपको एक V की बेसिस मिल जाएगी कंसिस्टिंग ऑफ दीज एलिमेंट्स, एंड देन वी शैल शो दैट ऑल दीज एलिमेंट्स आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। तो जो हमारा क्लेम था दैट देयर एग्जिस्ट अ बेसिस कंसिस्टिंग ऑफ म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ये आपका पूरा हो जाएगा, राइट? सो कैन आई कंटिन्यू फॉर अनदर 2 minutes? बोलिए। हाँ, बस 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, तब तो हमारा काम बन जाएगा, कल हम आई कैन स्टार्ट फ्रेश। सो ओके, सो व्हाट आई डिड वाज कि हमने एक n डायमेंशनल का सब स्पेस लिया, उसकी एक बेसिस ले ली जो कि ऑलरेडी ऑर्थोगोनल है, उसमें हमने एक एलिमेंट और जोड़ दिया जो कि इसके बाहर है। तो ये सब तो ऑलरेडी म्यूचुअल, अब केवल z आ गया है। तो देखेंगे, हम देखेंगे z भी इन z किसी भी एलिमेंट के साथ ये ऑर्थोगोनल हो जाएगा, इन किसी के साथ।
राइट। तो सब पूरा के बड़ा सेट भी म्यूचुअल ऑर्थोगोनल हो जाएगा, बता देंगे बेसिस है, राइट। सो नाउ वी claim that Z is orthogonal with xi for every I. क्यों? As अगर आपने तो क्या दिखाना पड़ेगा कि Z और xi का इनर प्रोडक्ट 0 है, यही होता है ऑर्थोगोनल की परिभाषा। Z का मान रख दीजिए, Z is equal to y minus y dash comma xi. So this is going to be equal to y or xi का इनर प्रोडक्ट minus y dash और xi का इनर प्रोडक्ट, which is equal to y xi minus y dash का फुल फॉर्म ये है। अच्छा, हमने xi लिख दिया है ना, तो हम इसको j कर देते हैं। चलिए, क्या फर्क पड़ता है, हार्डली मैटर्स। ये हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू y xi minus this is leader in the first variable, so this will be summation beta j xj xi I from 1 to n। अब आपका खेल शुरू होगा। क्या शुरू होगा? बिकॉज दिस सेट वॉज कंसिस्टिंग ऑफ म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। तो यहां पर ये xi तो फिक्स्ड है, ये xi फिक्स्ड है, ये xj वेरी कर रहे हैं। तो जब j बराबर i करेंगे तो सब जीरो हो जाएंगे, ये सब जीरो हो जाएंगे, क्योंकि ये सेट जो था म्यूचुअली ऑर्थोगोनल था, राइट। केवल जब j बराबर i के होगा तभी कुछ बचने की गुंजाइश है, बाकी सब टर्म खत्म हो जाएंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू ओवर j होगा ना? क्या चीज? बोलिए। थॉमसन ओवर j। ठीक बोलो, ठीक, यू आर राइट। ठीक है, यहाँ ठीक लिखा था, गलत कर दिया था। ओके, सो दिस इज y xi माइनस, हमने फिर दोहरा देते हैं, सब टर्म जीरो हो जाएंगे, केवल वही सर्वाइव करेगा जहां j बराबर i की होगा। सो दिस विल बी रिड्यूस टू ओनली वन टर्म, नेमली बीटा i xi, ये आपको मिलेगा, राइट। यू गेट ओनली दिस थिंग, राइट। अब ये किसके बराबर है? ये बराबर है आपके y xi, एंड डोंट फॉरगेट दैट बीटा आई हैड दिस फॉर्म। तो इसकी शक्ल क्या थी? y xi का स्क्वायर, और ये क्या है? ये भी तो xi का, ये क्या है? ये भी तो xi का स्क्वायर है, नॉर्म ऑफ xi का स्क्वायर। तो ये भी क्या है, किसके बराबर है? xi का स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपको कैंसिल हो जाएगा, एंड यू कैन सी दैट दिस इक्वल टू दिस थिंग, ये तो बराबर ही है। ये भी इनर प्रोडक्ट y xi, ये भी इनर प्रोडक्ट y xi है। सो यू विल सी दैट देयरफॉर यू विल सी दैट z xi is equal to 0 for every I. That is, z is orthogonal to xi for every I. So that means this set B is, so therefore this is, now we know this is म्यूचुअल ऑर्थोगोनल। ये आपका म्यूचुअल ऑर्थोगोनल हो गया आपका, राइट। एंड एक रिजल्ट था जो कि हम पुराने जाना थोड़ा मुश्किल होगा, हम लोगों ने एक चीज और देखी थी कि एनी सेट ऑफ
mutually orthogonal vectors is always linear independent, right? So I can add by the result, by an earlier result, therefore मतलब इसकी वजह से, because this ये mutual orthogonal है, therefore B is linearly independent also. Thus, B is a basis of V consisting of mutually orthogonal vectors. So every linearly independent inner product space necessarily always has a basis consisting of mutually orthogonal vectors. So I stop here and thank you for staying over time by about Thank you, sir. 8-9 minutes. आप जस्ट का फुल ले लीजिए अगर नहीं लिया हो तो। जरूरत है लेने की? इसका लीजिए पहले स्क्रीनशॉट। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Okay, then you can take this one. Okay, so this should complete. ठीक है? Thank you, sir. Okay. Okay. Thank you, sir. Okay, so bye for now. I'm now going to stop. Thank you, sir. Okay, welcome.